सर पहले तो थोड़ा बेस सेट कर दे फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूअर्स जिन्होंने आपको पिछले हमारे पॉडकास्ट पर नहीं देखा था। उनके लिए आई वांट टू गिव देम अ कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पे हम किन चीज़ों की बात करने वाले हैं। एंड एज अ हिस्टोरियन एंड समवन जो कि एविडेंसेस के ऊपर फैक्ट्स के ऊपर काम करता है, तो उन्हें आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि हिस्टोरी का जो फाउंडेशन है वो भी क्या करती है, आप एज अ पर्सन किस तरह से हिस्ट्री को देखते हैं। Right. So myself, my name is Chandru Ramesh. मैं एक former software engineer था HCL Technologies में, and then I had a very strong urge to work on the history of India. जब मैंने देखा कि लोग जो हैं disconnected feel कर रहे हैं अपने past से, and a lot of misconceptions about our past, our history, which is being floated around in social media. और हमारे जो children हैं, जो अगले generations हैं, they are kind of completely disconnected with the glorious teachings, philosophies of our past. बिकॉज हमारा जो कल्चर है बहुत एंटीक कल्चर है, बहुत टीचिंग्स, नॉलेज सिस्टम्स, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, इट वाज ऑसम. And history also gives us a lot of things to learn, the mistakes which happened in the past, we don't repeat it again. So I saw that for this country, history is often neglected subject, right? मेरे पास करियर बहुत अच्छा था, and I could have probably had 1+ crore, right? 1 crore plus package if I was working in my job and continuing. Then I saw ki what's the point in running behind money, because my family doesn't need, we are not surviving for our daily bread as such. तो मैंने सोचा कुछ important करते हैं, क्योंकि जीने वाले हैं बहुत short period, 60 70 80 years, पता नहीं कितना है. So let's do something important for this nation, for this culture and for our ancestors. So मैंने decide किया कि इस पे काम करना बहुत जरूरी है, and that's how I dedicated a significant portion of my life in this pursuit, that हम history को rewrite करेंगे, reset करेंगे from an Indian perspective, backed up by science, backed up by scientific data, backed up by evidences. So that's something which I did, and Historica as an organization is envisioned to achieve that. Right. We want to bring scholars, we want to train young historians, young archaeology students, we want to train them, and we want to let them loose so that they go and re-establish the history of India. Right. Okay. So कितने सालों की रिसर्च अब तक आपने की है? If you say the hardcore research is around 5 years, right? उसमें there was a build-up period for it, because I used to go to you could say a lot of historical sites, archaeological sites. तो मैं वहाँ पे जाके स्टडी करता था, बट उस टाइम पे मुझे उसका रेलेवेंस पता नहीं चल रहा था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इससे लोगों के लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा. राइट. बट देन सर्टेन इंस्टेंसेस इन माई लाइफ इंट्रीग्ड मी. तो मैंने तब रियलाइज किया कि इसका क्या पोटेंशियल है लोगों की लाइफ में, भारत के लिए, इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. देन आई स्टार्टेड फुल टाइम, right? And when I started full time, I was going through a lot of difficulties, because you have to, because I was married by then, so you want to do something of this sorts. Being married, it's quite challenging, Right. But I am really grateful to my father, who always stood with me. He said, "Beta karo, important hai. पैसे की फिक्र मत करो. Whatever you need, I'll do it." So I'm really grateful to my father in that sense that उन्होंने मुझे हमेशा एक होप दिलाया. He said, आप करो, बहुत ही important काम जो तुम कर रहे हो बहुत important काम है, इसको रोको मत, इसको करो. तो I was like, कैसे करूँ? I need support. He said, don't worry, I am there for you. You do it. Okay. And I know what you're capable of. I know what you can create and what impact you will create, what you will achieve. I know what you're capable of. We are someone we always create, because we are Sindhis from we left our ancestral homeland from Pakistan. So he used to give me that narrative. He said, हम जहाँ पे भी जाते हैं हम फाइट करते हैं और अपना बनाते हैं. Right. So he said, हम बनाते हैं भाई, तुम भी बनाओ, अपना बनाओ. Okay. So मैंने बोला कि आपका बिजनेस, कोई बात नहीं, we will plan something, कोई इशू नहीं है, तुम करो. तुम्हें ये इंस्पायरिंग है, तुम्हें लग रहा है कि it is important, देश के लिए important है, तो करो. So in that way, my father was a big support, and big role of my wife. Right. Starting में we had difficulty to kind of make it workable in our relationship, but then both of us sat well with each other, and today she is my support, my source of inspiration. She takes care of the family and makes sure that I do this without any hindrance.
keeps inspiring me, keeps sending good messages when I'm out for trips and lectures. So and also she's doing her own research in whatever way possible. So in that way, I'm also thankful to my wife and all the hundreds and hundreds of people who have supported me throughout to reach whatever I am today. सर आज हम कर्ण के बारे में बात करने वाले, बट इवन बिफोर हम उसकी बात करें, इन द 5 years जो आपने कहा कि एक हार्डकोर जो रिसर्च का पीरियड था, उस 5 years में व्हाट वाज द बिगेस्ट, आई वुड वांट टू नो कि बिगेस्ट रेवलेशन क्या था अबाउट महाभारत जो आपको पता चला? So the biggest revelation regarding the Mahabharata would definitely be, I mean many were there. बहुत सारे ऐसे revelations हैं जो मुझे बहुत surprise किए, impact किए and to much extent shock भी किए. Few of them were very awesome. एक है जैसे मैंने देखा कि the Yadavas are not mythological. क्योंकि यादवास के लिए inscriptions हैं, यादवास के लिए cave paintings है, यादवास मतलब जो मेन यादवास थे उनके coins available हैं. अदर रिलीजन्स में भी उनके रेफरेंसेस हैं, वेद में उनका रेफरेंस है, महाभारत में है. सो दैट वाज वन बिग शॉक फॉर मी कि जो यादव थे दे आर नॉट माइथोलॉजिकल और इमेजिनरी, किसी ने उसको क्रिएट कर दिया. ये मेरे लिए एक बड़ा रेवलेशन था. एंड ऑफ कोर्स वन मोर रेवलेशन वाज द कुरुस. ओके, कुरुस एंड पांडवास वर आल्सो कुरुस, राइट? कुरु वंश के थे, तो कौरव थे और पांडव थे, राइट? तो ये दोनों का हिस्ट्री भी इट्स कनेक्टेड टू द कुरु डायनेस्टी, राइट? और ये जो कुरु डायनेस्टी है इट्स आल्सो हिस्टोरिकल. उसके भी सिमिलरली जस्ट लाइक पांडवास के कैसे इतने सारे कैटेगरीज में एविडेंसेस हैं, इनके भी थे. ओके, सो ये दो चीज मेरे लिए बहुत बड़े रेवलेशन थे. वाओ फैक्टर, शॉक, सरप्राइज. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस रिसर्च, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस स्केल में एविडेंसेस अवेलेबल हो सकते हैं. एंड व्हेन आई डिड आई वाज लाइक स्टन. इवन जब भी अभी भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि भाई इतना एविडेंसेस है, अवेलेबल है, ये मिथोलॉजी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. बट यादव्स के लिए क्यों? मतलब जब मैं स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़ता था तो यादव्स के बारे में तो पढ़ाया जाता है हमें, तो मतलब वो क्यों शॉकिंग था? शॉकिंग इसलिए था कि इट इज नॉट मियरली लिटरेचर. ओके, राइट? अगर सिर्फ लिटरेचर में उसके बाद चल रहा है तो यू नो वी कुड ऑलवेज से अरे सिर्फ लिटरेचर में किताब ने किसने लिख के चले गए, राइट? बट इट्स नॉट मेनली लिटरेचर. इसके लिए लिटरेचर है, मल्टीपल अदर कैटेगरीज ऑफ एविडेंसेस जैसे मैंने आपको बताया, सब इसमें अवेलेबल है. दैट्स व्हाई इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी कि अगर कोई हुक्ड अप स्टोरी है तो सिर्फ लिटरेचर में किसने लिख के चले गए, दैट्स समथिंग यू नो दैट कुड बी कंसीडर्ड. बट इसके लिटरेचर भी है, इंस्क्रिप्शन, ये वो मल्टीपल एविडेंस, मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ एविडेंसेस है. दैट्स व्हाई इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी कि ये झूठ हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सर आपने कुरुस की बात की, कौरवों की बात की, इनके लिए क्या एविडेंस मिलता है एग्जैक्टली? कुरुस के लिए सी कुरुस आर दी भरतवंशीस एंड कुरुस के लिए देयर आर एविडेंसेस from the perspective of inscriptions, Buddhist literatures, and the existence of the Kuru Vamsha and the Bharata Vamsha is also mentioned in the Veda and the Mahabharata. And also we have references in other literary sources like Panini, Patanjali and all that. So in that sense, इसके evidences and references भी numerous हैं, just like the Yadavas. Okay, okay. तो सर हम जब कौरवों की बात कर ली हमने, अब थोड़ा महाभारत को भी जानते हैं, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं या जिन्हें शायद महाभारत के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उन्हें आप बता दो कि महाभारत क्या है एग्जैक्टली? महाभारत अगर हम लिटरली उस वर्ड को देखें, महाभारत मीन्स ग्रेटर भारत या ग्रेटर इंडिया. सही वर्ड नहीं होगा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ग्रेटर इंडिया, ऐसे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ग्रेटर भारत मतलब जो भारत था, हाउ वास्ट इट वाज जियोग्राफिकली स्पीकिंग, तो महाभारत है, राइट? सो दैट्स वे अ जियोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग. एक है जेनियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो जीन्स या मतलब जो बोल सकते हैं वंशावली के हिसाब से. सो भरत वंश का हिस्ट्री, right? That's one way we see Mahabharata. And Mahabharata also means the history of the Bharata Vamsha during the Mahabharata period, मतलब during the period of Pandavas and Kauravas. उस टाइम पे क्या भरत वंश का चल रहा था, the greater war between the Bharata Vamshi, right? भरत वंश के बीच में जो war हुआ था, महाभारत युद्ध, उसकी पूरी उस पर्सपेक्टिव में भी उस वर्ड को देखा जा सकता है. तो महाभारत वर्ड को मल्टीपल एंगल्स में देखा जा सकता है, 3 पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया. सो ये है महाभारत. ओके, एंड महाभारत को फिर हम जानते हैं वो उग्रश्रावी नाम के जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उनके थ्रू हम जान रहे हैं. जो वेदव्यास जी ने लिखा, फिर उसे कोई और बताता है, एंड वो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, बट उग्रश ऋषि जो थे वो उसे सुन के किसी और को बताते हैं, और वो महाभारत हम सुन रहे हैं. यस, सो जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, द फर्स्ट बुक व्हिच वाज
initially given was Jay Hmm. and then expanded to Bharat, Right. and then finally we have what is called as Mahabharat. But ऐसा भी नहीं है कि it was interpolated and it was kind of created new literature disconnected from Jay and Bharat. ऐसा नहीं था. Right. It was under the supervision of the same group of people, rishis, munis, कि इसको इस तरह से expand करना है, and all the disciples and their disciples वैसे उनके नेतृत्व में हुआ था. Okay. So it's not something like disconnected in that way. But yes, it was expanded from Jay to Bharat to Mahabharat. Right. तो सर महाभारत जो ये किताब हम कहते हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से इससे बनाया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए. Right. So महाभारत किताब जो है it is a महाकाव्य. So महाकाव्य, काव्य आप समझ पा रहे हो, right? It is a great literature in terms of its size and the kind of content it covers. Multiple content. It may have politics, it may have ethics, dharma, relationships, and politics. तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं. इतने सारे टॉपिक्स एक ही किताब में कंपाइल होके महाभारत के नाम पे हम इसको जानते हैं. Of course, geography भी एक टॉपिक है which is covered. So lot of things are covered in this gigantic literature called as Mahabharat. तो इसमें it starts with आदि पर्व. आदि पर्व जो है, आदि हमें नाम से क्लियर है, आदि मीन्स द बिगिनिंग. सो आदि पर्व, देन सभा पर्व, ऐसे फिर होता है वन पर्व. राइट. सभा मतलब आप समझ रहे हो, सभा जहाँ पे वो जो गेम ऑफ डाइस खेला जाता है. देन वन पर्व, जब वो वन पे चले जाते हैं, ऐसे पर्व बिल्ड होते रहता है. टोटल 18 पर्व ऐसे. तो फिर आता है जब मल्टीपल सेनापतिज आर टेकिंग चार्ज. पहला जो चार्ज लेने वाला पर्व है वो है 6th पर्व. ओके. राइट. छठवां पर्व, जहाँ पे भीष्म जो है वो ही इज दी कमांडर इन चीफ, सेनापति है. राइट. राजा कौन है? दुर्योधन. एक साइड पे दुर्योधन, एक साइड पे युधिष्ठिर. हाँ. तो इसमें तो क्लियर लिखा है, जैसे गीता में भी यू विल सी दैट इन चैप्टर 1 राजा नाम से दुर्योधन को पुकारा गया है. सो ही वाज एब्सोल्युटली अ किंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. दुर्योधन और सेनापति भीष्म. भीष्म वाज द इनिशियल सेनापति. राइट. पहले सेनापति. हाँ. फिर वो जब मारे जाते हैं, देन ग्रेजुअली पहले द्रोण आते हैं, द्रोण के बाद फिर कर्ण आते हैं, कर्ण के बाद शल्य. सो पहला आता है भीष्म पर्व, जब भीष्म इज सेनापति. फिर भीष्म इज किल्ड, ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोस. देन वी हैव द्रोण हु टेक्स चार्ज. राइट. द्रोण भी बहुत फियर्सली पावरफुली फाइट करते हैं. देन फाइनली कम्स द रूल ऑफ कर्ण. कर्ण जो है, ही बिकम्स द सेनापति, कमांडर इन चीफ. और उसके बाद कर्ण के डेथ के बाद, उनके मृत्यु के बाद शल्य जो है, he becomes the सेनापति. So शल्य भी जब मारे जाते हैं, उसके बाद महाभारत वॉर इज कंप्लीटेड. ओके. सो शल्य जो है, ये नकुल और सहदेव के जो अंकल होते हैं वो है. माद्री पुत्र, मद्र जनपद. यस, वो मैं बताता हूँ आपको. जैसे शल्य जो है, he was the मामा of नकुल एंड सहदेव. ओके. नकुल एंड सहदेव जो है वो कुंती पुत्र नहीं है. हाँ. राइट. कुंती पुत्र 4 है. 3 हम जानते हैं, पर एक्चुअल में 4 है. कर्ण को मिलाने से 4 है. तो ये 2 जो है भाई, भाई नकुल एंड सहदेव, ये जो है दे आर सन्स ऑफ माद्री. और माद्री कहाँ से आती है, उसका नाम कहाँ से आता है? बिकॉज शी इज फ्रॉम मद्र. मद्र से आई है, इसलिए उसका नाम है माद्री. मतलब वन हु बिलोंग्स टू द मद्र किंगडम. राइट. मद्र डायनेस्टी या मद्र किंगडम, जैसे भी आप बोलो. तो बिकॉज शी इज फ्रॉम द मद्र किंगडम, शी वॉज नोन एज माद्री. तो उनके बेटे थे नकुल एंड सहदेव. और उस मद्र राज्य का राजा कौन था? शल्य. ओके. एंड दैट शल्य, ही वॉज ऑन द साइड ऑफ द पांडवस. पांडवस के साइड में लड़ने के लिए ही आए थे. बट दुर्योधन ने जो ट्रिक किया, उसके कारण उनको दुर्योधन का साइड लेना पड़ा. ओके. ये स्टोरी है महाभारत के हिसाब से. Okay. So he was the last Senapati to be killed. With his death and after the deaths which were happening before and after, Shalya was the final Senapati. When उसके बाद तो ज़्यादा कुछ possibility नहीं था for Kauravas to bounce back. Okay. तो ये जो मद्र राज्य है, ये present day location कौन सा होगा? मद्र राज्य जो है, it is centered around सियालकोट. सियालकोट जो है, जो पाकिस्तान में जो आता है. पाकिस्तान जो है, ऑफ कोर्स भारत में ही था वो भी. सियालकोट शहर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द मद्र जनपद. ओके. मद्र जनपद जो है, उनका हेडक्वार्टर्स था सियालकोट. और सियालकोट का नाम कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम साकला. ओके. सो साकल
at certain point of time the court was added, Sakalkot, right? Sakalkot, और Sakalkot due course of time Sakalkot बन गया सियालकोट. सियालकोट. ओके. तो शायद वहाँ के लोगों को पता नहीं है ये सियालकोट का नाम आया कहाँ से. It comes from Sakala, Sakalkot. ओके. सो ये मद्र जनपद का नाम जो है इट कम्स फ्रॉम साकलकोट. ओके. सो ये हमने शाल्यजी और मद्र जनपद की हमने बात की, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कर्ण, उसके बारे में भी आपने कहा था कि कर्ण पर्व भी है एक. तो एग्जैक्टली कर्ण पर्व में क्या है, कर्ण कौन है, इसके बारे में आई थिंक सो लोगों को भी जानने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब भी कर्ण की बात होती है बहुत पोलराइजिंग सबके थॉट्स होते हैं, तो काफी डिबेटेबल सब्जेक्ट भी है, तो इसके बारे में मुझे जानना है. राइट. So Karna जो है he is the third सेनापति during the Mahabharat war on the side of the Kauravas. So Karna और दुर्योधन का फ्रेंडशिप बहुत ही क्लोज था, बहुत ही थिक फ्रेंडशिप था. They had their own goals as well, ऐसा नहीं है. तो so Karna and Duryodhan had friendship from the times when the early history of Mahabharata is narrated. हम देखेंगे कि they started becoming quite close. And एक पॉइंट पे दुर्योधन जो है डिसाइड करता है कि मैं जो है कर्ण को अंग राज्य दूंगा. राइट. अंग जो है इट इज लोकेटेड इन साउथ बिहार अप्रोक्सीमेटली. साउथ बिहार. हाँ, साउथ बिहार में. Okay. तो वो रीजन जो है दुर्योधन गिव्स टू कर्ण कि भाई तुम यहाँ पे शासन करो. क्योंकि एक पर्टिकुलर डिबेट आता है कि ये कौन है भाई, ये कौन है बीच में आ रहा है, इसको कैसे हम एंटरटेन करें. तो वहां पे दुर्योधन बोलता है भाई ये भी राजा है, देखो मैंने इसको राजा बना दिया, ये अंगराज का अंग राज्य का राजा है. तो दुर्योधन ने उसको राजा बना दिया. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ही स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी प्रोमिनेंट एंड very impactful. Right. Quite impactful during the entire saga unless he is killed. उनका बहुत इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं कर्ण का. तो कर्ण का जो राज्य था वो था अंग, एंड अंग का जो हेडक्वार्टर्स था वो था चंपा नगरी जिसको बोल सकते हैं. राइट. चंपा नगरी. तो ये था अकॉर्डिंग टू द महाभारत अंग एंड चंपा नगरी. सो जब हम अंग की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि दुर्योधन ने कर्ण को वहां का राजा बना दिया, अंग के लिए हमारे पास में कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस है क्या, ये सच में एक राज्य था, इसके बारे में बताइए. बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं. जैसे आप देख सकते हो इन अथर्ववेदा एंड ऑल्सो इन गोपथ ब्राह्मण, जो दो प्राचीन किताबें हैं, इनमें वर्णन है अंग राज्य का. राइट. अंग लोगों का वर्णन है, अंगास उनका वर्णन है. तो अंग राज्य जो है हिस्टोरिकल था, इसमें कोई संदेह नहीं है. सो मच सो दैट ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड जो 16 महाजनपद थे उसमें एक महाजनपद था अंगराज्य. ओके. सो ये 16 महाजनपद का रेफरेंस अंगुत्तर निकाय में आता है. ये बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट लिटरेचर है. इसमें लिखा गया है कि अंग नाम का एक राज्य हुआ करता था. सो एक मिथोलॉजिकल राज्य नहीं है. So, वास्तव में अंग नाम का राज्य हुआ करता था और उसका हेडक्वार्टर्स जो मेन सिटी था अकॉर्डिंग टू महाभारत वाज चंपा नगरी और चंपा. ओके. चंपा नगरी के लिए हमारे पास में रेफरेंसेस है. चंपा नगरी के लिए हमारे पास रेफरेंसेस है महाभारत में. और सबसे एक फैसिनेटिंग रेफरेंस है बाय युआन चुआंग. युआन चुआंग कौन है? युआन चुआंग एक चाइनीज ट्रैवलर है. कई लोगों को पता होगा युआन चुआंग केम ऑल द वे फ्रॉम चाइना एंड he visited India, several Buddhist sites, collected manuscripts, studied and did a lot of things. तो युआन चुआंग जो है he refers to the city of Champo. अपने राइटिंग्स में लिखते हैं that there is the region called as Chanpo. क्योंकि बहुत सारे जो प्रोनाउंसिएशंस हैं चाइनीज में थोड़े उसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि स्थानेश्वर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जो आज हम जिसको बोलते हैं थानेसर. ओके. थानेसर जिसको कई लोगों को पता होगा. थानेसर नाम का शहर या रीजन है कुरुक्षेत्र में. थानेसर का नाम आता है स्थानेश्वर से. ओके. स्थानेश्वर बन जाता है थानेसर. तो कई ऐसे वर्ड जो है संस्कृत से मिसप्रोनाउंस होके क्रिएट हो जाते हैं थानेसर. तो थानेसर जो है वो आज का नाम है. स्थानेश्वर जो नाम है इसको चाइनीज ने, एंशिएंट चाइनीज ट्रैवलर्स ने कैसे प्रोनाउंस किया है? उन्होंने इसको बोला है सातानीसोफोलो. है सातानीसोफोलो. हाँ. तो स्थानेश्वर उसको वो लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं सातानीसोफोलो. तो वैसे चंपा, तो इस चंपा या चंपा को इन्होंने चांपो ऐसे, तो अपने हिसाब से उन्होंने इसको प्रोनाउंस किया. तो चंपा नाम का शहर या नगर या रीजन जो है वो भी हिस्टोरिकल है क्योंकि ये बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में भी कंफर्म्ड है दैट अंगराज्य था एंड चाइनीज सोर्सेस से भी कंफर्म है कि ऐसा एक शहर था उस रीजन में
और ज्योग्राफिकली हम इसको मैप करेंगे तो इस साउथ या साउथ ईस्ट बिहार क्वाइट क्लोज टू बंगाल, वंग के पास पड़ता है ये रीजन अंगा। ओके प्राचीन जनपद था जो आज हम रफली इसको देखेंगे, मोस्ट ऑफ साउथ या साउथ ईस्ट बिहार, मे बी स्लाइटली इन बंगाल एंड स्लाइटली इन द सदर्न स्टेट, प्रॉब्ली इन झारखंड। तो ये इट इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ अंगा। ओके राइट। सो सर आपकी बुक में तो आपने बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस दिए हैं एंड आपके साथ में बात करने का एक जो यूएसपी मुझे लगता है वो यही है कि आप एविडेंसेस एंड फैक्ट्स के ऊपर बात करते हो। इनफैक्ट जैसा अभी भी आपने कहा कि अंग के लिए भी आपने एक एविडेंस दिया, एक फैक्ट बताया, चंपानगरी के लिए भी आपने बताया। जब हम अंग की बात करते हैं तो अंग और वंग ये बहुत सी बार मैंने सुना है लोगों को कहते हुए, क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ महाभारत, इन टर्म्स ऑफ कर्ण, इनका क्या रिलेशन है? ज्योग्राफिकली स्पीकिंग ये बहुत पास थे। अंग एंड वंग जो है बहुत ही पास थे। Okay. तो एक पॉइंट पे कर्ण जो है, महाभारत में लिखा है कि एक पॉइंट पे अंग एंड वंग दोनों का राज्य कर्ण के हाथ में था। अच्छा राइट, सो दैट्स वन थिंग। और सबसे फैसिनेटिंग डिटेल ये है कि आज का जो नाम है बंगाल, वो नाम भी वंग से आता है। काफी मतलब सिमिलर वो है प्रोनाउंसिएशन। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए तमिलनाडु में जाके आप बंगाल वर्ड यूज नहीं करते हैं, लोग तमिल में बोलते हैं वंगालम। वंगालम, क्योंकि वो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वंगालम। इसमें आता है तमिल में, बट वंगाल, राइट, वंगाल। Okay. सो हमारे नेशनल एंथम में भी वंग वर्ड आता है, राइट? हाँ, यस, दैट्स द ओरिजिनल वर्ड, बट इन बंगाली इट बिकम्स Bengali language, it becomes Banga, Bengal, Bangla, Bengal, correct, like that. So it becomes like that. But when we see the most ancient pronunciation जो है उस region का, वो है वंगा, वंग। Okay. So अंगा उसके बिल्कुल पास है वंगा। तो आज का जो region है बंगाल, बांग्लादेश वगैरह, वो उसका नाम वहीं से क्रिएट होता है, वंग से। ओके सर, जब हम कर्ण की फिर वापस से बात करते हैं तो राजसूय यज्ञ, तो इन इटसेल्फ राजसूय एक बहुत बड़ी चीज होती है एंड कर्ण चाहता था कि दुर्योधन का राजसूय यज्ञ हो। इसके पीछे क्या कहानी है एग्जैक्टली? सी, राजसूय का सिग्निफिकेंस क्या है? राजसूय का मतलब ये है कि जो राजा राजसूय कर लेता है, ही इज लाइक डिक्लेयरिंग हिज सुपीरियरिटी ओवर एवरीवन एल्स, राजसूय, एस्यूमिंग किंगशिप। तो कर्ण क्लियर था कि इनको राजसूय करवाना है, राइट, दुर्योधन को, बिकॉज युधिष्ठिर का तो राजसूय, वी ऑल नो दैट स्टोरी, राइट। तो उसको क्लियर था कि मुझे दुर्योधन को राजसूय करवाना है, उसका सुपीरियरिटी डिक्लेयर करना है। और राजसूय के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है दिग्विजय। दिग्विजय मतलब, दिग मतलब डायरेक्शन, दिशा, एंड दिग्विजय मतलब विजय, दिशा पे विजय। मतलब ऐसे नहीं कि दिशा मतलब हवा पे विजय ले रहे हैं, दिशा, दिग्विजय का मतलब ये चारों दिशाओं में जो भी लोग हैं, मतलब मेनली जो राजा है, सबको हम सबड्यू करें। ओके। या जो भी एक्सेप्ट कर रहा है हमारे सुपीरियरिटी को, वो ट्रिब्यूट्स देगा, ट्रिब्यूट्स लाइक गिफ्ट्स देगा, दान देगा। तो ही विल गिव ट्रिब्यूट्स टू दैट किंग हु इज कमिंग फ्रॉम फॉर दिग्विजय। नहीं, अगर उसके ट्रिब्यूट को मान नहीं रहा है तो लड़ाई होगा। ओके। लड़ाई में अगर ये जो आया है बाहर से, अगर वो जीत गया तो और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा। यहाँ से जो भी ट्रिब्यूट्स लेना है, राइट, गिफ्ट्स लेना है, जो भी वेल्थ लेना है, लेके और आगे बढ़ेगा, जहां तक हो सकता है मैक्सिमम हो जाके उसको कॉन्क्वर करेंगे। ये है दिग्विजय ट्रिप। सो राजसूय के तुरंत बाद, मतलब राजसूय जब डिसाइड कर लेते हैं कि राजसूय करना है, राइट, राजसूय यज्ञ जब करना है, जब डिसाइड करते हैं, उससे पहले है ऑफ कोर्स दे डिक्लेयर इट, दे थिंक दैट दे हैव टू डू इट, देन होता है चारों दिशाओं पे जाते हैं कॉन्क्वर करने के लिए। और ये चीज हम देख सकते हैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी, मतलब उसके पहले 4 दिशा में 4 भाई जाते हैं। And महाभारत has a fascinating geographical description. Right. 4 भाई 4 दिशा पे गए थे। भीम जो है ईस्ट में, राइट, और अर्जुन जो है नॉर्थ, राइट, नकुल ऑन द वेस्ट, सहदेव ऑन द साउथ। 4 भाई 4 दिशा में, युधिष्ठिर वहीं बैठे थे बीच में। तो ये इनका दिग्विजय था। और कर्ण का कैसा था? सो जस्ट टू कट यू शॉर्ट हियर फॉर अ सेकंड, क्रोनोलॉजी मुझे सिर्फ एक बार समझना है ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आ जाए। आप पहले जो राजसूय यज्ञ है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये हम करने वाले, जो भी राजा है उसको लगता है वो डिक्लेयर करता है। उसके बाद में आप दिग्विजय पे जाते हैं, यू कॉन्कर, यू ब्रिंग इन द ट्रिब्यूट, जो भी वो जहाँ पे भी आपने कॉन्कर किया है, जो भी आपके सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसे आप ट्रिब्यूट लेके वापस आते हैं। एंड फिर ये जितने भी जगहों को आपने कॉन्कर किया है, वहाँ पे जो भी राजा थे या छोटे मोटे जो भी लोकेशन थे, जो मेन लोग थे, उन्हें आप उस यज्ञ में इन्वाइट करते हैं एंड वो यज्ञ होता है फिर।
दिस इज द क्रोनोलॉजी, राइट? यस, यज्ञ पे आते हैं ठीक और यज्ञ में दे डू देयर सैक्रिफाइसेस, वर्शिप जो भी करना है, रिचुअल्स करना है, और राजा डिक्लेयर किया जाता है ही इज द एम्परर। ओके, राइट, तो ये क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस है। तो वैसा चीज दुर्योधन के लिए भी कर्ण चाह रहा था। ओके, राइट, कर्ण वांटेड दैट दुर्योधन जो है वो भी एक पावरफुल एम्परर की तरह दिखे। तो उसके लिए दिग्विजय के लिए वो डिसाइड करता है कि चारों दिशाओं पे मैं जाऊंगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक बार दुर्योधन और दुशासन, शकुनी अलॉन्ग विद कर्ण, ये चार लोग जो है भीष्म का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि भीष्म जो है ज्यादातर पांडवों के फेवर में बात करते थे। तो इनका जब मजाक उड़ा के हंसते हैं तो भीष्म को बहुत दुख होता है, दुख होके वो चले जाते हैं वहां से। राइट, उसके बाद कर्ण जो है गरजता है, भाई मैं जाऊंगा चारों दिशा। भाई दुर्योधन, तुम्हारे लिए मैं चारों दिशा जाऊंगा और मैं पूरे दिशाओं में कॉन्क्वेयर करके हरा के मैं तुम्हारे लिए राजसूय करवाऊंगा। तो ये इसने एक प्रतिज्ञा ली थी। और दुर्योधन बहुत खुश हो गया, अच्छी बात है, करो। तो ये उसके बाद इनका कर्ण का जो है दिग्विजय यात्रा शुरू होता है। चारों दिशाओं में कई राज्यों और प्रदेशों को वो हराता है, नहीं तो वो लोग ट्रिब्यूट्स देते हैं खुद से। ये इसका हिस्ट्री है। ओके, तो कौन से ये राज्य होते हैं, इसके कोई एग्जांपल्स है? सो अगर आप देखेंगे चारों दिशाओं में अनेकों राजाओं को he had controlled or made sure that they offered tributes. North में he on the Himalayas he made sure that Bhagadatta offered tributes. Bhagadatta. And उसके बाद तो जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें अंग, मंग, मिथिला, मगध, राइट, ऐसे कलिंग जो उड़ीसा के रीजन है, आज का उड़ीसा रीजन है, तो ऐसे मल्टीपल राज्यों को वो हराते हैं, नहीं तो ट्रिब्यूट्स ले लेते हैं वहां से। देन ही डिसाइड्स टू गो टू साउथ। राइट, तो साउथ में भी ही गेट्स ट्रिब्यूट्स। और साउथ में जब वो जाते हैं ही मेक श्योर दैट पांड्या रीजन्स एंड केरला रीजन, राइट, एंड अवंतिया जो अवंती बोलते हैं वहां से, तो ऐसे मल्टीपल रीजन्स से वहां ट्रिब्यूट्स लेते हैं। और इन द वेस्टर्न डायरेक्शन जब वो जाते हैं तो यावन और बर्बरा, बर्बरा किंगडम से वो बर्बरा लोगों से ट्रिब्यूट्स लेते हैं। बर्बरा लोगों मतलब बर्बरा जो शब्द है, इट इज मोस्ट लाइकली द ओरिजिन ऑफ द बर्बरिका, which is most likely the origin of the term barbarians. Okay. Barbarians most likely है, because that's how this particular tribe might have got this name. There were a group of people known as the Barbara people. तो बारबेरियन जो इंग्लिश में शब्द है, इट इज मोस्ट लाइकली दैट इन्हीं लोगों से वो शब्द आया होगा। राइट, ओके। सो ऐसे चारों दिशाओं में कई राज्यों को कर्ण जो है हराता है, नहीं तो ट्रिब्यूट्स लेता है। वो अपने इच्छा से ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं कर्ण को, एंड देन ही कम्स बैक एंड गिव्स दोस ट्रिब्यूट्स टू दुर्योधन। ओके, बट सर जो मैंने सुना है अभी कर्ण के बारे में, सो अकॉर्डिंग टू जो आपने भी कहा, ये जो दिग्विजय के कैंपेन पे हो जाता है, ही कम्स आउट एज समवन जो कि बहुत एक स्किल्ड वॉरियर है, तभी वो इतने जगहों से इतना सब कुछ करके आया, जीत के आया है, एंट्रीब्यूट्स लेके आया है। बट ऑल्सो बहुत सारे रेफरेंसेस है जहाँ पे कहा जाता है कि कर्ण युद्ध छोड़ के भी भागा था, बहुत से जगहों पे हार भी गया था वो। तो एज अ वॉरियर क्या था वो, मतलब एक बहुत उम्दा किस्म का जो हम वॉरियर कहते हैं वो था, या डरपोक था शायद? वेल, कर्ण जो है डेफिनेटली डरपोक तो नहीं था। he was very courageous in warfare, but he also was not winning wars always. Like for example, आप देखेंगे कि जब भीम अपने दिग्विजय ट्रिप पे निकल रहे हैं तो रास्ते में अंगराज कर्ण से उनका लड़ाई होता है। जैसे इनका जब राजसूय हो रहा है युधिष्ठिर महाराज का, उस टाइम पे भीम जब निकले उन्होंने कर्ण को हराया। और कर्ण जो है महाभारत युद्ध टाइम पे भीम को बहुत ही मुश्किल पोजीशन पे डाल देते हैं। ओके, सो ऐसा होता है, कभी कर्ण जीते कभी भीम जीते, तो वो था। बट इन टर्म्स ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ वॉरफेयर, अर्जुन वाज फार सक्सेसफुल, एंड अर्जुन से कभी कर्ण जीत नहीं पाए। तो ये हिस्ट्री था। तो was he a coward? No, he was not a coward. But was his values proper?
नॉट एग्जैक्टली बिकॉज उन्होंने जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है उसके लिए वो एक मेजर कारण थे। तो उनके लिए क्या हुआ, क्या अपमान हुआ, वट एवर इट इज, किसी स्त्री को अपमानित करवाना, उसमें एक मेजर रोल प्ले करना किसी भी एक क्षत्रिय को या एक वॉरियर को या एक राजा को शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने जो भी उनको रिजल्ट मिला, इट वॉज प्राइमरीली बिकॉज उन्होंने चूज किया ये साइड कि अधर्म के साइड पे मैं खड़े रहूंगा, विच इज दैट मुझे जो है पांडवों के प्रति, मेनली अर्जुन के प्रति बहुत अनईजी है। आई वुड से ही वाज जेलस ऑफ अर्जुन प्रोबेबली। तो इस फीलिंग, ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस टुवर्ड्स अर्जुना है, इट बिकेम सो बिग दैट उनको ये भी फर्क नहीं पड़ा कि एक स्त्री सबके सामने अपमानित हो रही है। तो वो उस चीज को कैटलिस्ट थे। ही सेड कि लेके आओ, he had a major role to play in that Vastraharan episode. So in that sense, was he a warrior? Yes, definitely he was a warrior. He was very courageous and powerful and so on. But उनके values were not the best. Right? Values के हिसाब से जैसे उन्होंने आप देखिए जैसे wars हो रहा है, तो एंशिएंट इंडियन कल्चर में था कि हम जो है स्त्री और बच्चे एंड बूढ़ों को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्रीस्ट वगैरह उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जनरली वुमेन को, क्षत्रियों के बीच में है सर। हाँ, जनरली वुमेन को बहुत ही रेस्पेक्ट दिया जाता है कि आप लोग इस पे आ रहिए, वी विल टेक केयर, वी विल नॉट इन्वॉल्व वुमेन, विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कि वुमेन को हम दांव पे लगाएंगे वॉरफेयर में। ये था नहीं कल्चर महाभारत के टाइम पे। तो टू पुट वुमेन एट स्टेक फॉर योर discomfort with Arjuna was not the right thing to do. So that's a very brief context of, अगर कर्ण की हम बात करें तो heroism में and warfare, strength, power में he was definitely very powerful, but his values were not the best. ओके सर, बिकॉज आपका स्पेशलाइजेशन जो है एविडेंस के ऊपर है, फैक्ट्स के ऊपर है, कर्ण को लेके हमारे पास में क्या एविडेंस मिलता है इन द हिस्ट्री? Historically speaking, Karna was famous for in my limited experience, एक है that he was instrumental in making the वस्त्रहरण, इसके लिए वो जाने जाते हैं। एंड और एक चीज के लिए जाने जाते हैं कि he was a friend of दुर्योधन। although we can question कि अधर्म होने के बाद भी he kept sticking with दुर्योधन, तो एक questionable friendship जो था दूसरा था। और तीसरा था कि he was known for charity, जो I mean literally everyone knows that he was famous for charity. दानवीर जिनको माना जाता था। तो तीन चीज में कर्ण जो है in my limited understanding he was very famous for these three things, and of course he was expert in warfare and all that. So ये तीन चीजें हैं कर्ण के बारे में हम we know quite well. Okay, and इसके एविडेंस हमें क्या मिलते हैं? Yeah, evidences wise you can see an inscription, 1400 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है जो जिसका नाम है पट्टडक्कल इंस्क्रिप्शन। तो इस इंस्क्रिप्शन में चालुक्य राजा विजयादित्य, उनके गुण जो हैं कर्ण से कंपेयर किए गए हैं। ओके, कि कर्ण जैसे कर्ण जितना दान करता था वैसे ही हमारे जो चालुक्य राजा है वो भी बहुत बड़े दानवीर हैं। अच्छा, ऐसे टाइप का एक इंस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं। ओके, ये ईयर कौन सा था? मतलब ये करीब आप मान के चलो 6th century CE में, 6th century 1400 years पुराना इंस्क्रिप्शन है। Okay. उस टाइम पे भी लोग जानते थे कि मतलब कर्ण जो है वो दान में बहुत फेमस था, कि दान देने में he was very well known among for that. ओके सर, जब हमने इस कॉन्वर्सेशन की भी शुरुआत की थी तब हमने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के बारे में बात की थी। Yes. एक चीज जो तभी मुझे पूछनी थी बट मेरे दिमाग से निकल गई थी, हस्तिनापुर की आपने बात की थी। इन द प्रेजेंट डे इंडिया हस्तिनापुर कहाँ पे होगा, एंड इंद्रप्रस्थ जो हम कहते हैं वो कहाँ पे होगा? Yeah, so इंद्रप्रस्थ जो है it is mentioned in several ancient literatures, like in the writings of Greek sources, like for instance Ptolemy, and we also have other literary sources. तो Greek sources में इंद्रप्रस्थ का नाम है इंदबरा, दूसरा एक नाम है इंदोपथ। ओके, राइट, सो ऐसे मल्टीपल नेम्स इंद्रप्रस्थ के लिए हम देख सकते हैं। तो इंद्रप्रस्थ वाज क्वाइट अ प्रोमिनेंट एंड अ हिस्टोरिकल सिटी। तो इसका रेफरेंस ये है कि वो सदर्न कुरु लैंड था। तो कुरुस के 3 रीजन्स थे, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। ओके, तो ये सदर्न कुरु लैंड जो था
वो फॉरेस्ट लैंड था। तो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके बनवाया गया था व्हाट इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ। ओके, ये प्रेजेंट डे इंडिया में कहाँ पे होगा? पुराना किला, पुराना किला, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, या सो दैट्स द रीजन व्हिच टुडे वी नो एज दिल्ली और न्यू दिल्ली। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है इंद्रप्रस्थ। ओके, आज भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में देयर इज दिस रीजन व्हिच इज नोन एज एरिया, जिसका नाम है आईपी एक्सटेंशन, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन या इंद्रप्रस्थ। ओके, शायद आपको पता नहीं होगा बिकॉज़ यू आर फ्रॉम मुंबई। या दिल्ली में एक रीजन है व्हिच इज कॉल्ड एज आईपी एक्सटेंशन। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड वो भी ओके, क्वाइट फेमस है। इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली में बहुत फेमस है। आई मीन लोग हर कोई जानता है इस चीज को, उससे अवेयर है। जितना यहाँ पे इन पार्ट्स वेस्टर्न इंडिया या साउथ इंडिया हम इसको जानते नहीं है कि लोग दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम से एक्सेप्टेबल है। Okay. So they are aware of it and they know that this was Indraprasth. Okay, and Hastinapur? Hastinapur जो है it is on the banks of Ganga. Okay. इंद्रप्रस्थ जो है it is on the banks of Yamuna and Hastinapur is on the banks of Ganga. Okay. वो जो है हरियाणा में पड़ता है, further north. आज भी एक सिटी है हस्तिनापुर। सो मोस्ट लाइकली उसी सिटी के प्रॉक्सिमिटी में एंशिएंट हस्तिनापुर था। ओके, एंड कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में ही आता है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, उसका लोकेशन जो है वो बिल्कुल स्पॉट परफेक्ट है। उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आज का कुरुक्षेत्र है दैट इज एंशिएंट कुरुक्षेत्र। ओके सर, कुरुक्षेत्र के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें जाननी है। तो फर्स्टली इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है, बट देन अगेन वहां पे वॉर हुआ, तो इसके पीछे क्या रीजन है? हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें कुरुक्षेत्र के लिए क्या मिलता है? क्योंकि आपने कहा था कि एक्यूरेट है आज भी वही लोकेशन, तो आई एम श्योर कि कुछ एविडेंसेस होंगे जिसके बेसिस पे आपने कहा। तो ये दो चीजें। या सो इफ यू सी द गीता, भगवद गीता स्टार्ट्स विद दिस श्लोका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि संजय लड़ने के लिए दोनों खड़े हैं, पांडव एंड कौरव खड़े हैं, धर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो इन्होंने क्या किया? इट लुक्स लाइक ए वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, इजंट इट? आप देखिए, यू नो, खाने के लिए मैं प्लेट लेके, स्पून हाथ में तैयार है, सब तैयार है, तो मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा? बिल्कुल खाऊंगा, राइट? लड़ाई के लिए दो आर्मीज खड़े हैं, वो थोड़ी ना जाके फूल बांटेंगे, लड़ाई करेंगे, बिल्कुल लड़ाई करेंगे। सवाल ऐसा क्यों पूछ रहा है धृतराष्ट्र? इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस तो इसके ऊपर आ नहीं जाएगा, राइट? ही वांट्स पांडवास टू बी किल्ड, राइट? वो चाहता है कि पांडवास बचे ना, तो जस्ट रिकन्फर्म कर रहा है। ऐसा तो नहीं है धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस से ये साधु बन गए और सोचे कि नहीं नहीं चलो यार सब दे देते हैं दुर्योधन को, क्योंकि सब दे के फिर चले गए, फिर फ्यूचर में फिर से उनको फीलिंग आ गया कि हम फिर से आके अपना प्रॉपर्टी मांगे, राइट? इससे बेहतर है मार डालो उनको। धृतराष्ट्र का ये, वैसे ये एक्सप्लेनेशन कई प्राचीन आचार्यों ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दिस इज द मोस्ट लाइकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, करेक्ट? राइट? सो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र का कॉन्टेक्स्ट क्या है? धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है बिकॉज ये साइट जो था स्पेसिफिकली वॉर के लिए नहीं था। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मैसिव है, कल्चरल सिग्निफिकेंस मैसिव है, धार्मिक सिग्निफिकेंस मैसिव है। कैसे मैसिव है? लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी द कुरुस का जो रीजन है, कुरु जो भरतवंशी थे, उनका रीजन जो है ऑन द नॉर्थ इट वाज कुरुक्षेत्र, राइट? वो ज्योग्राफिकली कुरुक्षेत्र था, उसका मेजर सिटी जो है आज कुरुक्षेत्र बोला जाता है, राइट? फिर जो सेंट्रल रीजन था इट वाज मोर फॉर जियोपॉलिटिक्स, उसमें एग्रीकल्चर वगैरह वो भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जियोपॉलिटिक्स है, बट उसका जो सेंट्रल हब है वहां पे हस्तिनापुर था, which is the headquarters of the Kurus. And south जो रीजन था वो काइंड ऑफ फॉरेस्ट लैंड था, जो नॉट यूज्ड। तो उस लैंड को उन्होंने पूरा कुरु जंगल जिसको बोला गया था, तो पूरा उस एरिया को साफ किया गया। साफ करके वहां पे कृष्णा एंड अर्जुना ने दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन क्लीनिंग दैट एंटायर प्लेस फ्रॉम फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन किया गया था और वहां पे इंद्रप्रस्थ क्रिएट हुआ। तो नॉर्थन सिटी है कुरुक्षेत्र, सेंट्रल सिटी है हस्तिनापुर, सदर्न सिटी है इंद्रप्रस्थ, राइट, विच इज नाउ दिल्ली। Okay. So the northern region है कुरुक्षेत्र, इसका historical significance massive इसलिए था because it was not meant for wars, but because इतना religiously या धार्मिकली important spot था, right? It was believed that यहाँ पे अगर हमारा मृत्यु हो जाएगा then हमें मोक्ष मिल सकता है या स्वर्ग मिल सकता है, तो better let's fight there, अच्छा होगा सबके लिए, right? तो इसीलिए कुरुक्षेत्र चूज किया गया था। ये भी एक कारण है, अमॉन्ग द मेनी रीजंस व्हाई कुरुक्षेत्र वाज चूजन, ये भी एक कारण है दैट इट वाज चूजन टू बी द प्लेस वेयर द पांडवास एंड कौरवास विल फाइट। ओके, राइट। एंड ये जो स्पॉट है कुरुक्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप देखिए
शतपथ ब्राह्मणा, जैमिन्य ब्राह्मणा, ऐसे कई वैदिक सोर्सेस में इसका वर्णन है दैट इट इज अ वेरी सेक्रेड रिलीजियस स्पॉट, राइट राइट. सो ये क्लियर है कि वो रीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ कल्चरली एंड हिस्टोरिकली, और वही रीजन में महाभारत वॉर भी हुआ था. राइट. सर, तो कर्ण के जिस तरह से हम ऑफ द टॉपिक भी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक मुझे चीज़ भी बताई थी पार्थ वाली, उसको लेके आई वांट कि आप वो सेम चीज़ रिले कर दे हमारे ऑडियंस के लिए भी. राइट. सो कर्ण इज द मोस्ट कॉमन नेम. जनरली हम जो है कर्ण नाम जानते हैं, राइट, बहुत फेमस है. बट इसके अलावा कर्ण के अदर नाम भी थे, राइट. एक था जैसे राधेय, उनकी मदर का नाम था राधा, राइट. सो राधेय, ऑफ कोर्स शी इज डिफरेंट फ्रॉम राधा कृष्ण. हाँ, तो राधा, राधेय, ये एक नाम था. तो राधेय इज अ वेरी प्रोमिनेंट नेम. सबसे ज्यादा यूज किया गया नाम राधेय है महाभारत में फॉर कर्ण. ओके. कर्ण के बाद द वर्ड कर्ण इज द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट इज राधेय. और एक और नाम है अंगराज, जो अंग राज्य के राजा थे. Correct. तो एक है, और एक है पार्थ. हाँ, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था क्योंकि पार्थ तो हम अर्जुन को जानते हैं पार्थ के नाम से. यस यस. तो पार्थ इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पृथा के पुत्र थे. पृथा कुंती है. हाँ, क्योंकि कुंती नाम जो है इट इज नॉट द लाइक द रियल नेम ऑफ कुंती. रियल नेम है पृथा, PRTHA, पृथा. राइट. पृथा वहाँ नाम से, उस नाम से आता है पार्थ, राइट. सो टेक्निकली स्पीकिंग जो भी पृथा के पुत्र हैं वो पार्थ है. ओके. राइट. सो इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर अर्जुन. हम सब जनरली किसी को भी बोलो पार्थ, हाँ, हे पार्थ, क्योंकि कृष्ण भगवान ने पार्थ कहा था उसे. और वो सीन्स भी बहुत फेमस है महाभारत सीरियल के, हे पार्थ, राइट. सो दैट्स फेमस. बट पार्थ जो शब्द है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनीवन हु इज द सन ऑफ पृथा. कोई भी पृथा के बेटे हैं उनको पार्थ वर्ड यूज किया जा सकता है. पृथा कौन है? पार्थ है. हाँ, पृथा कौन है? वो है कुंती. और कुंती, हाँ, कुंती पे आता है. कुंती का नाम क्यों कुंती नहीं है? मतलब कुंती है बट इट इज नॉट हर रियल नेम. मेन जो नाम है वो नहीं है. हाँ, मेन नाम है पृथा. कुंती नाम जो है इट इज फ्रॉम बिकॉज वो कुंती जनपद से है. अच्छा. कुंती भोज एक जनपद था, एक राज्य था जिसका नाम था कुंती भोज. ओके. इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन पता है हमें? ज्योग्राफिकल लोकेशन है मध्य प्रदेश में. अच्छा. ओके. राइट. अगर आपको जीरो इन करना है देन प्रॉब्ली इन सम फ्यूचर सेशंस हमें ना एक किंगडम्स को जीरो इन करके ट्राई करेंगे एज मेनी एज पॉसिबल. तो वो अलग है, बट अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो कि MP में आता है कुंती, राइट, कुंती भोज. तो बिकॉज शी इज फ्रॉम द कुंती किंगडम, तो इसीलिए उनका नाम हो गया कुंती. ओके. लॉन्ग ई. ओके. राइट. कुंती. सो ये उनका नेम है बेस्ड ऑन द किंगडम. इस किंगडम से, इस राज्य से वो आए हैं, इसलिए. जैसे फॉर एग्जांपल गांधारी, ये नाम कहाँ से आता है? बिकॉज वो गंधार से है. करेक्ट. मॉडर्न डे कंधार. हाँ. वैदेही बिकॉज शी इज फ्रॉम विदेह, राइट. सो वैसे ये जो नाम है, यू नो, दीज किंगडम्स गिव द नेम्स फॉर दोज किंग्स एंड क्वींस, क्योंकि वो अपना आइडेंटिफिकेशन उस किंग्स, सॉरी, बिकॉज वो जो किंग्स एंड क्वींस हैं वो अपना आइडेंटिफिकेशन अपने राज्य से करते हैं. राइट. राइट. हे भारत जब बोला जा रहा है पांडवों को या कौरवों को, मतलब भरतवंशी है. वैसे जो कुंती नाम है उनका रियल नाम नहीं है वैसे, मतलब जो नाम उनको दिया गया था इट इज मोर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन दैट वो कुंती जनपद से है, तो कुंती राज्य से है. सो वैसे पार्थ नाम करने के लिए इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो पृथा पुत्र है. पृथा कौन है? वो कुंती का रियल नाम है. ओके. सो भीम, युधिष्ठिर, ये भी पार्थ है, अर्जुन भी पार्थ है, कर्ण भी पार्थ है. यस. नकुल और सहदेव नहीं होंगे. नकुल सहदेव पार्थ नहीं हो सकते क्योंकि वो पृथा के पुत्र नहीं है. वो माद्री के पुत्र हैं. और माद्री नाम भी कहाँ से आया है? वो मद्र जनपद से आया है, बिकॉज वो मद्र से है इसलिए उसका नाम है माद्री. राइट. जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात की थी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में. यस. ओके. सर, फिर से कर्ण पे जाते हैं. कर्ण की जो डेथ थी वो भी एक बहुत आइकॉनिक सीन है. अब वो शायद BR चोपड़ा की जो वो एक महाभारत उन्होंने टेलीविजन सीरीज बनाई थी उसकी वजह से भी हो सकता है, या इन रियल लाइफ भी जो महाभारत में जिस तरह से उसे लिखा गया है, वेदव्यास जी ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, वो एक बहुत आइकॉनिक सीन है कि वो इन इटसेल्फ एक शायद पूरा प्रॉपर पॉडकास्ट हो सकता है. बट जिस तरह से डेथ हुई कर्ण की, उस तरह से क्यों डेथ हुई? राइट. सो डेथ जो कर्ण का है, बहुत बार उसको बहुत ही ड्रामेटिक वे में दिखाया जाता है, बिकॉज उसको विक्टिमाइज करवा जाता है
कि कर्ण सिचुएशन से गलती से बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे उसके लाइफ में, उसके मदर ने भी उसको छोड़ दिया, ऐसे वैसे मल्टीपल रीजंस दिखवा के बताते हैं कि ऐसे पूरा लाइफ उसका दुख है, एंड अल्टीमेटली वो बहुत ही एक क्रूएल डेथ मरा था। बट इन रियलिटी अगर आप देखेंगे ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जब कर्ण ने अधर्म का साइड चूज किया, जैसे हमने पहले डिसाइड किया, जैसे पहले डिस्कस किया था, जैसे ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग श्योर दैट वस्त्रहरण हो, राइट, उसका मेजर हाथ था उसमें। व्हाटएवर सेड एंड डन, अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट, स्त्री का इज्जत पे हाथ उठाना या स्त्री को अपमानित करना ये एक हायर कल्चर का एविडेंस नहीं है, राइट? It doesn't befit a person who is like a king or a warrior and all that. So I would not say that he was a perfect human being or बहुत ही उसके अच्छे गुण अच्छे गुण थे in terms of दानवीर थे, and दान बहुत देने में उनका नाम था, बिल्कुल था, और वॉरियर भी थे, बहुत धैर्यवान, बहुत ही करेजियस फाइटर थे। पांडवों के साथ भी उनका युद्ध बहुत ही इम्पैक्टफुल था। But because he did something like that, this वस्त्रहरण में उनका जो रोल था, and few other instances जो अधर्म के पाथ पे वो जाते हैं, that's why he faced this kind of death. Okay. Right? But otherwise he had the choice. कृष्णा ने भी कोशिश किया था, and multiple other लोगों ने कोशिश किया था उनको कि भाई this is not the right thing you're doing, you can choose. But कर्ण जो है वो कंटिन्यू करता है अपने लॉयलिटी दुर्योधन के प्रति। उसको पता भी था कि दुर्योधन जो कर रहा है इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट राइट, बट वो चूज करता है, बिकॉज ही चूजेस ही इज क्लासिफाइड एज अ पर्सन हु चोज द साइड ऑफ अधर्मा। सो हमें ये लेसन इसमें से हम ले सकते हैं कि हमारा कोई दोस्त है और अगर हमें पता चल रहा है कि वो उसका रास्ता सही नहीं है, हम उसको समझा सकते हैं, उसको एनरोल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बट अगर हमसे हो नहीं पा रहा है तो हमें वहां से हट जाना चाहिए। जब हम कंटिन्यू करेंगे अधर्म के साथ तो हम भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, राइट? तो हम कर्ण के लाइफ से ये एग्जांपल ले सकते हैं कि चाहे हमारे अंदर जो अच्छे गुण हो ना हो, जब हम अधर्म के साथ साइड करते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड फ्यूचर, राइट? सो बेहतर है कि जब आपको लग रहा है कि गलत चल रहा है, तो एक लेसन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपको लग रहा है आपका दोस्त जो है देश विरोधी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल भारत के विरोध में कुछ कर रहा है, स्पाई का काम कर रहा है, तो रिपोर्ट क्यों नहीं करेगा गवर्नमेंट को? डेफिनेटली करेंगे। वहां पे हम थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं मेरी दोस्ती सर्वोपरि है, राइट? हम जो है देखेंगे कौन सा हायर धर्म है, कि धर्म में भी क्या होता है, एक धर्म एक लेवल पे है, दूसरा धर्म दूसरे लेवल पे, कौन सा हायर धर्म है? स्त्री का इज्जत जो है वो सबसे कंपेयर टू दिस अदर एस्पेक्ट्स ये हायर चीज है। अगर तुम्हें अपमानित हुआ भी उसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई स्त्री के अपमान में एक मेजर रोल लोगे, राइट? सो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो व्हाट ही डिड वाज सर्टेनली नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, सो द डेथ व्हिच ही फेस्ड वाज प्राइमरली ड्यू टू द situations he created for himself. जैसे फॉर एग्जांपल उनको शाप मिला था, राइट, that he cannot use the weapons when he really need them, right? And उनका चैरियट जो है फंस गया था। और मूवीज में वैसे बहुत ही मसाला डालते हैं, रियल में ये नहीं हुआ था कि शल्य जो है छोड़ के भागे नहीं थे। अच्छा, शल्य थे, शल्य वाज ऑलवेज देयर, शल्य ट्राइड टू लिफ्ट द चैरियट, नहीं हो रहा था, देन कर्ण ने बोला कि मैं उठा के देखूंगा, तो दोनों अपनी कोशिश कर रहे थे, आखिर तक कर रहे थे, और जब कर्ण मारे गए अर्जुन के एरो से, उसके बाद शल्य जो है उसी रथ को लेके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं था कि जैसे ड्रामेटिक दिखाते हैं कि मारे गए एंड बहुत सारा ड्रामाज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था ऑल द सॉर्ट्स। सो whenever we study literature it's important, I mean whenever we study महाभारत it's important कि हम जो है authentic sources पे जाए। मूवी में या मेनली जो सीरियल्स आते हैं, बहुत बार ये होता है कि मिर्च मसाला बहुत ऐड करते हैं, राइट? मिर्च मसाला ऐड करना जरूरी है, तभी उनको लगता है कि तभी बिकेगा। सो हमें जो है वी शुड रेफर टू ओरिजिनल सोर्सेस के हिसाब से देयर वाज नो सच थिंग दैट शल्य लेफ्ट एंड रन अवे। ओके, ही वाज ऑलवेज देयर, एंड देयरफॉर कर्ण के डेथ के बाद he was the next powerful warrior, one of the most powerful warriors, so naturally he became the next सेनापति। इसीलिए अगले पर्व का नाम था शल्य पर्व, राइट?
और फिर आपने जैसे कहा कि उसके बाद में महाभारत एंड होती है, नहीं, उसके बाद महाभारत कुरुक्षेत्र का वॉर एंड होता है। कुरुक्षेत्र वॉर हाँ। एंड होता है, बट अगर आप देखेंगे पर्व के हिसाब से उसके बाद तो बहुत सारे पर्व है। राइट, हाँ। तो इसके बाद में फिर मतलब जिस तरह से डेथ्स हुई है सबकी एंड उसको लेके भी लोगों के अपने अपने थॉट्स होंगे, तो वो सब होगा आई एम श्योर। हाँ, जैसे एक पर्व है स्त्री विलाप पर्व, जिसमें सब जो भी लेडीज हैं, वॉरियर्स के वाइफ्स, वॉरियर्स के बेटियां या मदर्स, वो सब लोग आके वहाँ पे पूरा दुख में है, रो रहे हैं, तो स्त्री विलाप पर्व है। और एक है शांति पर्व, जहाँ पे they are now deciding that okay we'll settle with the peace. राइट। फिर एक है अनुशासन पर्व, डिसिप्लिन लाने का टाइम आ चुका है, अनुशासन। फिर जो आता है मौशल पर्व है, तो मौशल पर्व में क्या होता है, ये पूरे जो यादवाज हैं, यादवाज हर एक यादव दूसरे यादव को मारता है और कोई यादव बचते नहीं है, तो ये मौशल पर्व है। तो ऐसे बिल्ड होके फाइनली महाभारत जो टेक्स्ट है कंक्लूड होता है। ओके। तो सर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, एक चीज जो शायद हमें एड्रेस करनी चाहिए वो ये कि महाभारत के टाइम पे या महाभारत का जो इम्पैक्ट था, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो कहाँ तक था, एंड मतलब इसमें शायद हम भारत, जो अखंड भारत की हमने पिछले बार भी बात की थी, वो भी शायद इंक्लूड हो सकता है। राइट, सो स्पीकिंग ऑफ महाभारत, ज्योग्राफी बहुत ही वास्ट था। राइट, लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो, एटलीस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन में हम देखें, जो आज बहुत सारे लैंड्स हमारे पास है नहीं, भारत इंडिया के पास, तो उसमें एंटायर पाकिस्तान तो था ही। राइट, महाभारत की ज्योग्राफी में। एंड देन वी आल्सो हैड लॉट ऑफ अफगानिस्तान, आई मीन प्रॉब्ली द एंटायर actually the entire Afghanistan was under the Mahabharata's geography. And then Iran, right? Iran में अगर आप देखेंगे, there is this ancient name called as Parshva, पार्श्व जनपद, पार्श्व लोग या पार्श्व जनपद। सो पार्श्व बन गया पर्शियंस। ओके, राइट, सो इसका कनेक्शन भी महाभारत से, मतलब महाभारत का ज्योग्राफी वहां तक था। देन वी आल्सो हैव गंधार, व्हिच इज कांधार, वो तो सबको पता है, गांधारी वहीं से आई है। देन बालिका, बाल्हिका इज द नॉर्थन रीजन ऑफ अफगानिस्तान। जो बाल्हिका एक कुरु राजा थे, उनके वंशज वहां पे जाके सेटल हुए नॉर्थन अफगानिस्तान में, तो बन गया बाल्ख। ओके, BALKH। तो ऐसे मतलब ज्योग्राफी वाइज तो बहुत वास्ट था। टुवर्ड्स चाइना कुछ था? टुवर्ड्स चाइना, यस, लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि कृष्णा रेफर्स टू द वुल ऑफ द चीन पीपल। ओह, इंटरेस्टिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल युधिष्ठिर जो है, ही गिव्स गिफ्ट ऑफ द वुल ऑफ चीन, एंड कृष्णा उसको बहुत लाइक करते हैं, बहुत। तो दैट वे इट इज मेंशन। नेपाल का जो नाम है वो भी मेंशन है महाभारत में। ओह, नेप जनपद या नेप लोग बोल सकते हैं। सो नेप इज मेंशन। वंग तो हमें पता ही है, बंगाल, बांग्लादेश, वंगा, तो वो है। तो वैसे आप इस ज्योग्राफी को देखेंगे तो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। आज अनफॉर्चुनेटली बहुत ही खंडित हो चुका है, बट द ज्योग्राफी ऑफ द महाभारत इज वेरी वास्ट। राइट, सो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली वी शुड कॉल इट एज महाभारत। ओके, राइट। तो आज जो अगर इंडिया का नाम भारत चेंज हो भी गया, इट इज भारत, इट इज नॉट महाभारत। सो महाभारत तब होगा जब ये जो महान भारत था, मतलब जो वास्ट भारत था, भारत, या यू कुड से लगता है, तो वो रीजन जो है, पूरा रीजन जब आज के भारत के कंट्रोल में रहेगा, देन यू कुड एक्चुअली कॉल इट महाभारत दैट वे। ओके, आई थिंक जिस तरह से हमने ऑफ द कैमरा भी आज बात की है एंड ऑन द कैमरा भी आपने कहीं पे मेंशन किया कि बहुत सारे हमें सेपरेट पॉडकास्ट करने पड़ेंगे इफ वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि महाभारत का क्या इम्पैक्ट था, बोथ फिलोसॉफिकली तो ऑफ कोर्स एंड ज्योग्राफिकली, आर्कियोलॉजिकली, एविडेंसेस वगैरह। तो आई डोंट इवन नो कि हम किस तरह से इसे करेंगे, बट फॉर श्योर वील प्लान दोज, क्योंकि जो अभी आपने बात कही ये ज्योग्राफी वाली, इन इटसेल्फ भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, क्योंकि चाइना तक हम, मतलब वो जो वुल की आपने बात की, यहाँ पे ईरान तक, जो कि आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से हम देखें, लेंस से देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि हमारी ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट उस टाइम पे वहां तक था। तो फॉर श्योर दिस डिमांड्स फॉर अ न्यू पॉडकास्ट प्रोबेबली ऑन द ज्योग्राफी और द एविडेंस। बट सर आज का ये पॉडकास्ट करने के लिए थैंक यू। आपने कई सारी चीज़ें बताई अबाउट करना, कई सारी एविडेंसेस पे हमने बात की है। कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हमसे एंड यू स्टिल वांट टू डिस्कस? वेल, अगर डिस्कस करना है देन वी नीड a separate podcast, because महाभारत is an encyclopedia. अगर आप फॉर एग्जांपल आप लेंगे अर्जुन एंड कर्ण का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका एक अलग पॉडकास्ट ही बन जाएगा, इतना कंटेंट है कि उनका पूरा हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ,
कैसे लड़ाई किया, क्यों किया, इसके माइंडसेट में क्या था, हम्म। उसका क्या था, फाइनली कैसे कंक्लूड हुआ। राइट। तो वैसे कंटेंट वाइज महाभारत में कोई कमी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्ली मैं एंटायर लाइफ भी पॉडकास्ट करता रहूं फिर कंप्लीट नहीं होगा। राइट। इतना सारा कंटेंट महाभारत हमें दे सकता है। सो बट वी विल टेक द मेजर वंस जो Sure. इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, उनके लाइफ्स के लिए, हम वी विल टेक दैट एंड वी विल डू दैट इन द ओके फ्यूचर। ओके। अगर आप लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख चुके हो, आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज बाय द बुक। मैंने 30-40% ऑफ द बुक अभी तक पढ़ी है एंड इट इज फैंटास्टिक। मतलब इस बुक की तरह महाभारत पे आई डोंट थिंक सो कोई और बुक लिखी गई है विद सो मच डेटा, फैक्ट्स, एविडेंस, जोग्राफिकल आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आपके भारत को जानो, असली भारत को जानो। एंड आप सर की ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिका को भी डोनेट कर सकते हो। यू कैन चेक आउट हिज वेबसाइट, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऑफ कोर्स। सो